नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেশ্বরী স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেশ্বরী স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद जाकिर हुसैन की बेटी की एक तस्वीर वार्ड के युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू द्वारा वायरल करने के आरोप के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पार्षद जाकिर हुसैन एवं उनकी बेटी ने आरोप लगाया कि पिंटू सिद्दीकी द्वारा उनकी तस्वीर को स्थानीय लोगों को दिखाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई, जिसके बाद लिखित रूप से इसकी जानकारी नियामतपुर फाड़ी एवं कुल्टी थाना को दी गई, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए नियामतपुर फाड़ी का घेराव कर उक्त आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। अपने आरोप में टीएमसी पार्षद और उनकी बेटी ने मीर हाशिम का भी नाम लिया, जो कि पूर्व पार्षद और एमएमआईसी हैं। मीर हाशिम ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी की घर की बेटी के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की भी एक बेटी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी पार्षद शुरू से ही उनके खिलाफ रहे हैं और अब वो उनके खिलाफ उल जलूल आरोप लगा रहे हैं। So yesterday what happened, around 11 o'clock, Pintu asked my uncle to wait, and when he wait, he was saying that why the Jakir is into the matter of land robbery, why he is into that matter. After my uncle told him that let him be, if they are fighting, he is also fighting. But he told, showing his picture, phone, see the pictures, I will upload and circulate, tell Jakir to be aware of this matter. Then I itself with my father came to this police station. That policeman told me that you are also my sister, you are kind of my daughter, I will protest. And early morning what he is saying? He is saying that he has not circulated the pictures. I have told him through the phone. It is the duty of the police to call through the, the chore to the phone and tell him that don't share the pictures. Is this the justice the people of this area women are getting? Strict actions to be taken. He is not circulating the pictures, but he is showing through his phone, and that is the same kind of amount if he can share the pictures. The situation is same. Even if it is not circulating, he is showing through his phone, and that should be stopped right away. And the pictures are being circulated by Mir Hasim family, because 2 months back I heard it from my friend. She told me coming to that his family is circulating the pictures, laughing around. I told my friend that I will not continue the friendship with you. This is the matter of 2 months before. Now same pictures received by Pintu, and he is showing the pictures all over the world. Mir Hasim given it to the Pintu. Mir Hasim, it is all done by Mir Hasim. In the elections also, he tried to demean my father's image by circulating many kind of images, audios, by paying the women around. Now he's just demeaning so that my father gets worried and he get out of the matter. And the land, I am telling you, I have seen since my childhood. He has sold the land. His members are staying over there, and now he's blaming that my father has done that. If अगर मेरे पापा को करना होता ना, तो वो जो नल का पैसा हासिम 3-3 हजार रुपया लेता है, फ्री में नहीं करता। বুকুরটা বিক্রি করে যে ও একটু গরিব লোককে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, ও জেলে আছে। দিয়ে পরে ও পারলো না, দিয়ে পরে আমাকে আমার মেয়েটাকে ছবিটা তুলে মানে ওকে মানে এডিট করে নানা রকম বলতে পারছি না মেয়ে আছে আমার, দিয়ে এরকম করে দিয়েছে। রাত্রে 2টার সময় এসে পরে নাগপুর থানাতে জিডি করলাম, জিডি নাম্বারও দিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত যখন বললো অ্যারেস্ট করবো না কিছু নেই, বলছে ঠিক আছে দেখা যাবে, ঠিক আছে দেখা যাবে। আমি মেলও করে দিয়েছি এসি সাহেবকে, তাও কিছু হচ্ছে না। ও ভিডিওটা সব থেকে লোককে দেখাতে হবে। পিন্টু আর মির হাসিম
পিন্টু কে বলে? পিন্টু ইউথ প্রেসিডেন্ট এখন হয়েছে, যে তোলাবাজি করতো আগে লাচিপুরে, ওই তৃণমূল কংগ্রেস। আমি একটু কাউন্সিলর, আমি একটু নিজে পার্টির কাউন্সিলর, কিন্তু আমার যদি ঘরে যদি মেয়েকে হামলা করবে, ও ওরকম পার্টিতে থাকতে আমার কোনো দরকার নেই। কোন পার্টি কি উদ্দেশ্যে করেছে এটা কি মনে হচ্ছে? এ আমাকে হ্যারাসমেন্ট করছে। আমি যেতে পরে, আমি মামাটি মানুষের কাজ দেখে পরে, মামাটি মানুষের কাজটা ভালো দেখে পরে আমি জয়েন করেছি। সেই জন্য ওরা মনটা মানে হয়ে গেছে, কেন জয়েন করলো। তুলাবাজি যে লাচিপুরে চারদিকে যে তুলাবাজি করতে না, সব বন্ধ করে দিয়েছে না, সে বেশি এফেক্ট হয়ে গেছে। ইনকাম টোটাল ইনকামটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমার একটা চিন্তা আছে, লোকের কাজ করবো না খাগে না খানে দেঙ্গে, একটা চিন্তা আছে লোকের কাজ। কিন্তু এই বড় বাবু আছে দালাল, এই বড় বাবু দালাল পুরো দিশাটাকে বরবাদ করে দিয়েছে। পুরো ভালো লোকের নিয়ে মানে কি বলে ওকে চামচাগিরি, রাত্রে ভরে মোটরসাইকেল নিয়ে দৌড়ে, রাত্রে 2 লাখ 3 লাখ বিলিং হয়, তারপরে এখানে ফয়সলা হয়ে থানাতে মাস করে মিচল করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের এই কাউন্সিলর আছে, আমরা জানি না। কিন্তু এই বড় বাবু দালাল আছে, 1 নম্বর দালাল, একে ট্রান্সফার করা দরকার। আমাদের নিজে বাড়িতে আছে না, এই যে এলিগেশন লাগাচ্ছে, এটা বাজে কথা। এটাতে কোনো নেই, সত্যতা নেই। কারণ মেয়ে সবারই আছে, আমারও আছে, ওরও আছে। উনি যে কথাটা বলছেন, উনি দেখাতে পারেন যে আমি ভাইরাল করেছি। মুখে কথা বললে হবে না, কোনো জিনিসকে দেখাতে গেলে আপনাকে প্রুফ করতে হবে। আপনি কোনো একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখান কি মীর হাসিন ফটো ছেড়েছে, আপনি এটা প্রমাণ করতে পারবেন? উনি পাগল হয়ে গেছেন, উল্টাপাল্টা কথা বলছেন। আমারও মেয়ে আছে, সমাজের মেয়ে আছে, আমি সমাজকে নিয়ে চলি। কারণ মেয়ের উপরে আমি আঙুল তুলব, এটা কোনোদিন হতে পারে না। আজ পর্যন্ত আমি তো ছিলাম, পাওয়ারে ছিলাম, এখনও আছি, করছি, দৌড় করছি। আর এরকম কোনো এলিগেশন নেই। আজকে যদি আমি এরকম করেছি তো আর আগে তো কোনো এলিগেশন আসতো। এবারে উনি প্রথম থেকে আমার বিরোধিতা করেছে। এবারে উনি চাইছেন কি আমি কাউন্সিলর হয়ে গেছি, কিভাবে হাসিনকে ফাঁসানো যায়, কিভাবে হাসিনকে ভিতর করা যায়। উনি ভাবছেন আমি কাউন্সিলর নয়, আমি একটা কাউন্সিলর মানে অল ইন অল, পার্টি কিছু নেই আমার সামনে। উনি যেটা চাইছেন সেটা হবে না। आसनसोल नगर निगम के 26 नंबर वार्ड में आए दिन ट्रांसफार्मर की खराबी के कारण बिजली चली जाती है, जिस वजह से लोगों को भारी दिक्कतें पेश आती हैं। खासकर इस गर्मी के मौसम में बिजली न रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर आज आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने 26 नंबर वार्ड में बाबू तालाब इलाके का दौरा किया और दोनों ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जगह चिन्हित किया। इस बारे में उन्होंने कहा कि आए दिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर की गड़बड़ी के कारण बिजली चली जाती है, जिस वजह से लोगों को परेशानी होती थी। इसके बाद यहाँ पर 2 नए ट्रांसफार्मर लगाने पर फैसला लिया गया था, लेकिन ट्रांसफार्मर कहाँ लगाए जाएंगे उस जगह को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे सुलझा लिया गया है। बार बार ट्रांसफार्मर उड़ जाना, फेस चल जाना, आए दिन का डेली का ही प्रॉब्लम हम लोग के वार्ड में बना हुआ है। ख़ासतौर से इस सौजी आटा चक्की ट्रांसफार्मर का लगातार 3 दिन से ट्रांसफार्मर बंद रह रहा। डी साहब से, एसएम साहब से बोलने के बाद जो यहाँ पर 315 आज उसी का इंक्वायरी के लिए लोग आए कि यहाँ पर 315 और 160 2 ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेंस किया जाएगा। उसी के लिए थोड़ा सा जगह का विवाद है, सॉल्व कर लिया गया इलाकाई लोगों को लेकर यहाँ पर नया ट्रांसफार्मर, ताकि आने दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कितना नंबर वार्ड है भैया? वार्ड नंबर 26। आज आसनसोल नगर निगम में सामाजिक संस्था एकतान तथा आसनसोल नगर निगम द्वारा आसनसोल के बीबी कॉलेज के सहयोग से एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर आसनसोल नगर निगम के कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जहाँ तकरीबन 150 व्यक्तियों के प्रेशर, शुगर सहित अन्य शारीरिक जांच की गई। इस बारे में MMIC गुरदास चैटर्जी ने कहा कि सेहत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती, इसलिए लोगों को उनके सेहत के बारे में जागरूक करने के लिए आसनसोल नगर निगम की तरफ से समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एकतान नामक संस्था द्वारा बीबी कॉलेज के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। आज के आसानसोल कॉर्पोरेशने ঐক্যতনের যে ফ্রি চেকআপ ক্যাম্প সাপোর্টেড বাই বিবি কলেজ, তো
এখানে হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জন্য ঐক্যতানকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এখানে সুগার মাপার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো শরীর সম্বন্ধে সবাইকে একটু সচেতন থাকা দরকার। সেই জন্য আমরা প্রায়ই আমাদের কর্পোরেশনের যে থেকে এর আয়োজন করে থাকে, ঐক্যতান এবারে তারা এখানে করছেন, তার জন্য এদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কতজনের হচ্ছে এখানে? মোটামুটি 150 থেকে 200 জনের হেলথ চেক আপ করা হচ্ছে। হেলথ চেক আপ হচ্ছে আজকে ঐক্যতান এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পক্ষ থেকে এবং সঙ্গে সহযোগিতা করছেন আমাদের ডিবি কলেজ আসানসোল, যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার এখানে ফ্রি তারা অর্গানাইজ করছেন, তাই জন্য অনেকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং আপনারা জানেন যে স্বাস্থ্যই সম্পদ, তাই আমাদের এই তীব্র দাহদাহে মানুষ যাতে সুস্থ থাকে এবং আমাদের এই কর্পোরেশনে যারা স্টাফ আছেন, যারা প্রতিদিন আছেন, তো তারা যাতে শরীরকে ঠিক রাখে তার জন্য যে পরীক্ষা এখানে চলছে, এখানে বিভিন্ন রকমের ব্লাড গ্রুপ থেকে শুরু করে ব্লাড, সুগার, প্রেশার ইত্যাদি নানা ধরনের এখানে পরীক্ষা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে শরীরের প্রতি যত্ন নেবার জন্য। এবং এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই, আগামী দিনে এর দীর্ঘায়ু কামনা করি। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गोराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर, वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गोराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आसनसोल दक्षिण टाउन महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर से 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। यहाँ पर पश्चिम बर्धमान जिला महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष असीमा चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक,
आसनसोल दक्षिण ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कहकशां रियाज, जनरल सेक्रेटरी जयश्री बीट सहित इस ब्लॉक की तमाम महिला तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताएं उपस्थित थीं। মূল্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক দিন তেল, পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়ছে, রোজগার নাই। একদিকে মোদীবাবু বলেছিলেন যে 15 লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্টে আসবে, হাজার হাজার বেকার যুবকের কাজ হবে। অন্যদিকে দিদি বললো যে আমি মানুষের সঙ্গে থাকবো, মমতা ব্যানার্জি বললো যে মানুষের কাজ করবো। দিদি বলেননি কোনোদিন যে আমি 500 টাকা দেবো, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি সরকারে আসার পর মমতা ব্যানার্জি দেখলো যে মহিলাদের 500 টাকা লক্ষ্মী ভান্ডার দিতে হবে তাদের সম্মান জন্য, সেটা দিল। মমতা ব্যানার্জি দেখলো যে আমাদের ছোট ছোট এই রাজ্যের শিশুরা যারা স্কুল পড়াশোনা করছে, তার বাবা মা হয়তো কোনো অন্য জায়গায় মজুরি করছে, তার খরচ পড়াশোনা খরচ বরদাস্ত করতে পারবে না, তাদের জন্য স্কুলের ইউনিফর্ম, জুতো, বই, ব্যাগ সমস্ত জিনিস ফ্রি করে দিল। তাহলে দেখতে হবে কোন মানুষ কাজ করছে। যারা আজকে তৃণমূল বলে নাম করে বললে অন্য বলে গিয়েছে, তারা তৃণমূল ছিল না, কিন্তু আমি ওদেরকে বলবো যে আপনারা কাজ দেখুন যে আপনার সঙ্গে কে আছে, আপনার রাজ্যের আপনার শহরে কে কাজ করছে। আছেন তো আপনার দক্ষিণে বিধায়ক, আমাকে দেখান না বিধায়ক কি কাজ করছে। বিধায়ক মন থেকে কি মানুষকে খুঁজতে হচ্ছে যে দক্ষিণে বিধায়ক কোন জায়গায় আছে, হারিয়ে গেছে। উনি কখন দিল্লি, কখন কলকাতা, কোন অন্য জায়গা, বলছে আমাকে গোটা রাজ্য দেখতে হয়। রাজ্য দেখুন, কিন্তু যে জায়গায় মানুষ আপনাকে ভোট দিচ্ছে সেই মানুষের জন্য আপনি কি করছেন, সে উত্তরটা আছে ওনার কাছে নাই। তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে যারা এরকম মিথ্যা প্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের রাস্তায় থাকতে হবে। এবং আমাদের দলের যে কাজ, মমতা ব্যানার্জি আমাদের সর্বভারতীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ মেনে চলতে হবে এবং সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। যে অ্যাডপ্টরটা আমাদের রাজ্য সরকারের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কিম, সেই স্কিমগুলোকে আমাদের ঘরে ঘরে নিয়ে পৌঁছাতে হবে। সরকার মমতা ব্যানার্জি গোটা ভারতবর্ষে এটা কোথাও নেই যে সরকার পাড়া মহল্লার দিকে চলে, সরকারের কাজ পাড়া মহল্লাতে হয়। এটা কোনো ভারতবর্ষে নেই, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে। এখানে মা মাটি মানুষ সরকার আছে, মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বে সরকার আছে। সেই সরকার সরকারের যে কাজটা সেই সরকারি দপ্তর থেকে হচ্ছে, তারপরে আপনাদের পাড়াতে দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে রেশন কার্ড হোক, স্বাস্থ্যসাথী এবং স্বাস্থ্যসাথী, বাচ্চাদের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, বিভিন্ন স্কিম, কিষাণ বন্ধুদের, মহিলাদের লক্ষ্মী ভান্ডার, এই সমস্ত কাজগুলো, স্কলারশিপ, আখ্যাশ্রী। আজকে আমাদের এখানে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে। আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা এবং চন্দ্রিমাদির নির্দেশে তর্পণ আমরা এটার নাম দিয়েছি। অর্থাৎ আমরা মানুষের সেবায় নিজেকে সবসময় নিয়োজিত করি। সে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এত তীব্র দাবদাহতেও আমাদের এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চলছে। আমাদের রাজ্যে প্রত্যেকটা ব্লকে ব্লকে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চলছে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের এই ক্যাম্প চলছে। আমরা তাই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আর আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। বিজেপিতে মহিলা জয়েনিং হলো মানে বিজেপির মহিলাই তো বিজেপিতে জয়েনিং হলো আমার মনে হচ্ছে। কেননা দেখলাম সংবাদ মাধ্যমে বলল যে তৃণমূল কংগ্রেসের বঙ্গজননী। প্রথম কথা, এখন অ্যাট প্রেজেন্ট বঙ্গজননী আমাদের এখানে নেই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের, আমরা তো এতদিন ধরে করছি দলটা, আমরা কিন্তু সেই মহিলাদেরকে কোথাও দেখিনি। যখন বঙ্গজননী ছিল স্ট্যাবলিশ তখনও দেখিনি, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসেও দেখিনি। হিন্দিতে একটা প্রভার্ব আছে, নাচ না জানে আঙন টেढ़ा। এখানে অগ্নিমিত্রা পাল কোনো পরিষেবা দিতে পারছেন না। যেই এলাকার তিনি বিধায়িকা, মানুষের জন্য কোনো কাজ করতে পারছেন না।
এদিক ওদিক গিয়ে লাফাচ্ছেন, কখনো দেখা যাচ্ছে রাস্তায় বসছেন। আরে রাস্তায় বসুন, আমরাও রাস্তায় বসি, কিন্তু মানুষের জন্য বসুন, মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য বসুন। এই তো আমরাও ধর্ণামঞ্চ করব কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে। কেন না, মানুষকে যাতে 100 দিনের টাকাটা পাইয়ে দেওয়া যায়, আবাস যোজনার টাকা যাতে মানুষ পেতে পান, যেই কাজ থেকে পশ্চিম বাংলা বঞ্চিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা, মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য, পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা ধর্ণা মঞ্চে বসি। ওনার মতন रास्ते में पलथी मार के हम लोग नहीं बैठ जाते हैं। कैसे परिसेवा दी जाए उसकी चिंता सदैव रहती है। तो बीजेपी के लोगों को वो ज्वाइन करवाए ना, दोबारा तिबारा चौबारा, उससे हम महिला तृणमूल कांग्रेस को कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि ये तृणमूल महिला कांग्रेस नाम ही है तृणमूल, अर्थात तृण से उठा हुआ है। और हम लोग किसी को लालच देकर भी नहीं लाते हैं, किसी को कोई झूठा झांसा दिलाकर भी नहीं लाते हैं। लोग अपने मन से आते हैं। आप देखिए ना, इतनी गर्मी है, इसके बावजूद भी 50 महिलाएं आज ब्लड यहाँ पे देंगी। हर एक ब्लॉक में हो रहा है, खाली यही नहीं हो रहा है। तो महिलाएं अपनी मर्जी से आती हैं, क्योंकि महिलाओं को वो सम्मान मिला हुआ है। और देखा है बहुत जगह जाते हैं, बीजेपी का झंडा पकड़ते हैं, पकड़ने से पहले कहते हैं, आम जनता नहीं कहती है, बीजेपी के नेता लोग कहते हैं तृणमूल থেকে এসেছে। उसके बाद देखा जाता है बीजेपी का झंडा पकड़ने के 2 दिन बाद, तीसरे दिन फिर वही तृणमूल कांग्रेस के पास आते हैं, बोलते नहीं हम लोग को ममता दीदी ही अच्छी हैं, हम लोग की ममता दीदी ही अच्छी है, ममता दीदी के साथ ही हम लोग काम करेंगे। क्योंकि ममता दीदी जो सम्मान दी है पश्चिम बंगाल की महिलाओं को, दावे के साथ कह सकती हूँ सारे भारतवर्ष के किसी भी राज्य में इतनी महिलाओं को सम्मान कहीं भी नहीं मिला हुआ। यहाँ पे 50 महिलाएं ब्लड दे रही हैं। टारगेट कितना है? 50 का ही टारगेट है। और बोलूँगी कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जिन 50 महिलाओं ने अपना पहले टेस्ट कराया, क्योंकि पहले तो सब स्टेप से गुजरना पड़ता है, सब में वो ठीक ठाक ही है। इसलिए असीमा चक्रवर्ती, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान, तृणमूल महिला कांग्रेस। और भी नाम बोलिए, कौन कौन आपके साथ? मेरे साथ है हमारी ब्लॉक की प्रेसिडेंट कहकशा रियाज उर्फ खुशी, हमारी जनरल सेक्रेटरी जयश्री बीट, हमारी जनरल सेक्रेटरी है शर्मिष्ठा, उसके बाद हमारे डेप्यूटी मेयर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वसीमुल्लाह सर जी। इसके साथ साथ ब्लॉक की हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक के और नेतृत्व हैं, अंचल प्रेसिडेंट लोग हैं, बबली है, उसके अलावा अंचल प्रेसिडेंट है, काउंसिलर भी है कल्याणी राय। कितने नंबर वार्ड में ये हो रहा था? 85। ये 85 में। देखिए, हम लोगों को ये जिला प्रेसिडेंट का निर्देश था और ये हमें कलकत्ता से बोला गया था कि महिलाओं का एक ब्लड डोनेशन कैंप कराया जाए हर एक ब्लॉक में, और 50 यूनिट का टारगेट हम लोगों को दिया गया था, जो हम लोग आज पूरा कर लिए हैं। महिलाओं का ब्लड दिया गया है, जिसमें हम लोग आगे बढ़कर ये दिखाना चाहते हैं कि महिला तृणमूल कांग्रेस सिर्फ खून और पसीने और इससे नहीं, अपना ब्लड दे करके भी समाज के लिए आगे बढ़कर काम कर सकती है। परिवार के साथ साथ वो समाज के लिए भी अपना ज़रूरत पड़े तो खून भी दे सकती है। कल कुछ महिलाएं बीजेपी में योगदान किया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस महिला ने ज्वाइन किया है उसका नाम नाजनी खातून बताया गया, और वो बता रही थी कि वो टीएमसी पार्टी से बिलोंग करती थी, लेकिन करीब 8 साल 9 साल से हम महिला तृणमूल कांग्रेस के एक पोस्ट में है, हमने उसे कभी भी नहीं देखा अपने विधानसभा में। दूसरी बात ये कि जो लेडीज़ को लेकर के वो ज्वाइन की है, उनमें से एक भी लेडीज़ हमारे विधानसभा की नहीं थी। उसने ये कहा कि उसे मान सम्मान नहीं मिला है, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि अगर वो रहती टीएमसी में तो उसको पता चलता है कि महिलाओं का मान सम्मान क्या होता है। और वो गई है बीजेपी में, उसकी पर्सनल चॉइस है ये, लेकिन उसे 10 दिन के अंदर ही समझ आ जाएगा कि वो क्या भूल कर बैठी है। और वो पहले तो नहीं थी, लेकिन वापस आके ज़रूर महिला तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करेगी। क्या हो गया? देखो
देखिए ये तो मिसाल है। आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में, मैंने इससे पहले भी वक्तव्य में कहा, ये एक राजनीतिक दल है जो इंसान का खून ले रहा है, जान ले रहा है। दूसरी तरफ हमारा तृणमूल कांग्रेस के कर्मी, महिला सेल, औरतों का जो ये तृणमूल महिला सेल है, हमारा ट्रेड यूनियन, छात्र, टीचर लोग का, शिक्षक संगठन, जो भी संगठन है, सभी इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी, जान का खून दान कर रहे हैं, अपना रक्त दे रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सके। ये एक मिसाल है और ये भारतवर्ष में तृणमूल कांग्रेस के कर्मी ही करके दिखा पा रहे हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं पे आपको ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइज करते हुए हमारे तृणमूल कांग्रेस के सहयोगी कार्यकर्ता कर्मी मिलेंगे। आज यहाँ पे महिला सेल का हो रहा है, आसनसोल दक्षिण ब्लॉक का। अभी हमारा महिला तृणमूल कांग्रेस जिला सभानेत्री बोले 2 दिन के बाद आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक में है 10 तारीख को। तो इस तरह से लगातार ब्लॉक में महिला सेल की तरफ से, छात्र संगठन की तरफ से, यूथ की तरफ से, ट्रेड यूनियन की तरफ से, सभी जगह पे हो रहा है। और हम लोग ये कहते हैं कि आवाम के पास में ममता बनर्जी, हमारे नेत्री ममता बनर्जी और हमारे हम लोग के जो नेता, सर्वभारतीय नेता अभिषेक बनर्जी हैं, उनका ये कहना है कि आवाम के पास में रहना है, आवाम के साथ रहना है। तो आवाम के साथ में विभिन्न काम के साथ साथ रक्त ऐसा चीज़ है, खून ऐसा, ब्लड ऐसा चीज़ है जो किसी भी मेडिकल में नहीं मिलता है, कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है। ये इंसान के शरीर में ही तैयार होता है और एक इंसान के जीवन को बचाने के लिए, ज़िंदगी को बचाने के लिए हम लोग वहाँ पे जाके अपना रक्त देते हैं उनको। ये एक मैसेज। दूसरा मैसेज जो यहाँ से आता है कि एक तरफ राजनीतिक दल जो है, जिसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो भारत जलाओ पार्टी, ये जो है इंसानों को बांटने का काम करता है और हम लोग इंसानों को जोड़ने का काम करते हैं। जब ब्लड का ज़रूरत पड़ता है तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस जाति, किस धर्म, किस मजहब का मानने वाला है, मंदिर में जाने वाला है ना मस्जिद में जाने वाला है, गुरुद्वारा में जाने वाला है ना चर्च में जाने वाला है। हमें अपने पेशेंट जो हमारे घर में मरीज है उसका जीवन बचाने के लिए हम उस ग्रुप के मुताबिक ब्लड जुगाड़ करते हैं। छोटा जाति का ना बड़ा जाति का ये नहीं देखते हैं। तो आज हम लोग खून दे करके ये इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं कि हम सब इंसान हैं और एक इंसान को इंसान के पास खड़ा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी, जो इस अंचल के उनके विधायक भी हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सीखें तृणमूल कांग्रेस की इन महिलाओं से, जो घर संसार को चलाने के बाद जो है लोगों के पास में किस तरह से खड़ी हो रही हैं और किस तरह से इंसानियत का पैगाम आम कर रही कि इंसान इंसान है। चूँकि मैं ये पैगाम इसलिए कह रहा हूँ इस उत्तर आसनसोल दक्षिण की विधायिका को जानने के लिए, सीखने के लिए कि वो भी एक महिला है, इसलिए एक महिला से सीखे कि किस तरह से काम किया जाता है। वो इंसानों को बांटने का काम कर रही हैं, छोटे जाति बड़े जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बंटवारा कर रही हैं। और हमारा तृणमूल कांग्रेस महिला से लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए ये रक्तदान शिविर से पैगाम दे रही है। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना
हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।